Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa. I say good evening to all of you. So today I have come to you with some English writing tips. So let's see first one tip. Can you repeat back what you said? This sentence is long. Why? Because repeat and back are opposite words and we can't use back with the word repeat. Like re mean again. क्लियर। जिन वर्ड्स के साथ री यूज हो जाता है उनके साथ हम बैक का वर्ड यूज नहीं कर सकते। लाइक विल यू रिटर्न होम एट 9 o'clock? रिटर्न home at 9 o'clock. This is right. Will you return back home at 9 o'clock? This is wrong sentence. The reason is that the prefix re mean back. Like here are details. The prefix re already means back, so we do not say repeat back or return back. Also, what are prefixes? The second one sentence here is, can you return back the money to me? That is wrong, because here back is used with return and we can't use back with the word like return and repeat. And third one example is regain back. The Muslims will regain back their glory in the future. So here back is also wrong. The Muslims will regain their glory in the future. This is right sentence. Now what are prefixes? Prefixes are the not complete words, but they are morphemes. Morphemes are not complete words. Prefixes are morphemes that we use in the start of any word. जब हम किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई morpheme यूज करते हैं, लाइक री एंड कंप्लीट के साथ इन, फिर टाइडी के साथ अनटाइडी, दीज आर प्रीफिक्सेस। री, इन, अन, दीज आर प्रीफिक्सेस। तो जब हम किसी रूट वर्ड के साथ, रूट वर्ड मीन यहाँ पे टर्न, पीट, ये रूट वर्ड्स है और इनके साथ जब री यूज़ किया तो ये प्रीफिक्स पीछे लगाया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एफिक्सेशन। तो जिन सेंटेंसेस में री का प्रीफिक्स यूज होता है, देयर इज नो नीड टू यूज बैक। क्लियर? सो see the next tip. The next one tip is sentence patterns, say versus tell. So in sentences, some sentences have direct object and some sentences have इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिन सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम टेल यूज़ करते हैं और जिन सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम said यूज़ करते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज, शी said that she was hungry. नाउ हियर शी said, whom she said? उसने किसको कहा? We don't know. So that's why we can't use here said, told, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता वो किसको कह रही है कि वो हंग्री है। सो वी विल यूज हियर शी सेड इंस्टेड ऑफ टोल्ड। इन नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड मी दैट शी वॉज हंग्री। Here we know that whom she is saying, whom she was saying, यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि उसने किसको कहा है। So we will use here told instead of said. She told me that she was hungry. Now turn to next tip. The next one tip is to use of reach. Like here is a verb reach. So some students or some people use to with reach when they use this verb with home. Like he reached to home around 3 o'clock. Here to is wrong. Why? He reached home at around 3 o'clock. So do not add to when you use the verb reach. Reach के साथ हम to का verb टू प्रपोजिशन यूज नहीं करते। अराइव के साथ एट यूज होता है बट रीच के साथ देयर इज नो प्रपोजिशन विद द रीच। नाउ टर्न टू नेक्स्ट टिप। यूज ऑफ डिग्रीज एडजेक्टिव्स। टोक्यो इज मोर बिगर देन क्योटो।
Now, what is mistake here? Here is a big blunder, that is more versus bigger. Bigger is also comparison degree of adjective, and more is also comparison degree of adjective. You know that there are 3 degrees of adjective: positive, comparative, and superlative. Positive degree is used when we are talking about only one noun or pronoun. जब हम सिर्फ एक नाउन या pronoun के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री. लाइक टोक्यो इज़ अ बिग सिटी. Now here is big is positive degree. When we say Tokyo is bigger than Kyoto, here we are doing comparison of 2 cities which are Tokyo and Kyoto. Now we will use here comparative degree. So when we use Tokyo is the biggest city. Now here biggest is a superlative degree. So टोक्यो इज़ मोर बिगर दैन क्योटो. यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि टोक्यो इज़ बिगर दैन क्योटो. बिगर इज कंपैरेटिव डिग्री और टोक्यो इज़ मच बिगर दैन क्योटो बिकॉज बिगर इज कंपैरेटिव डिग्री एंड मच इज अ पॉजिटिव डिग्री. तो वी कांट यूज 2 कंपैरेटिव डिग्रीज एट अ टाइम. सो हेयर इज़ एन अदर टिप. यहाँ पे इसको याद रखने के लिए एक और हिंट भी है. डू नॉट यूज मोर व्हेन द वर्ड एंड्स इन ई आर. जब वर्ड्स ई आर पे एंड हो रहे होते हैं लाइक बिगर, तो बिगर के साथ हम यहाँ पे मोर यूज़ नहीं कर सकते. या तो कुछ भी यूज़ ना करें या फिर मच यूज़ कर लें. क्लियर? सो द राइट सेंटेंसेस आर टोक्यो इज़ बिगर दैन क्योटो या फिर टोक्यो इज़ मच बिगर दैन Kyoto. The next one tip is ago and in. Use ago to talk about a past event. जब हम किसी past event के बारे में बात कर रहे होते हैं लाइक लास्ट मंडे या फिर मतलब लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, इस तरह के या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह के इवेंट्स के बारे में बात करते हैं. इन शॉर्ट व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जब हम पास्ट सिंपल के बारे में बात करते हैं वहाँ पे टू यूज़ करते हैं. यूज इन टू टॉक अबाउट अ फ्यूचर इवेंट. यूज इन जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है और अगो जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है. आई वेंट टू द जिम 3 days बिफोर. टू द जिम, सॉरी हेयर इज़ अ मिस्टेक. दे नहीं यहाँ पे आना, यहाँ पे आएगा द. आई वेंट टू द जिम 3 days बिफोर. बिफोर नहीं, यहाँ पे अगो यूज़ होगा. क्लियर? आई वेंट टू द जिम 3 days अगो. वी विल ट्रेवल टू पेरिस आफ्टर 3 days. आफ्टर इज लॉन्ग in 3 days because we are talking about future. So for future we use in and for past we use ago. Clear? Now turn to the next tip. A success in baking a delicious cake. Success. I is here, I is subject and success is noun. So प्रोनाउन यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद नाउन यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नाउन यूज़ नहीं हो सकता. या तो वर्ब यूज़ होती है सब्जेक्ट के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. तो यहाँ पे उन्होंने सॉरी यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट के बाद द फॉरेन से डायरेक्टली नाउन यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग. आई सक्सीडिड इन बेकिंग अ डिलीशियस केक या फिर आई विल सक्सीड इन बेकिंग अ डिलीशियस केक या फिर आई गेट सक्सेस इन बेकिंग अ डिलीशियस केक. यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्टली नाउन यूज़ नहीं कर सकते. और अगर इसको एज अ नाउन यूज़ करना है तो माई केक वाज अ सक्सेस. ओके, सक्सेस इज नाउन. नाउन क्या होता है? थिंग या कॉन्सेप्ट होता है. सक्सीड इज वर्ब, वर्ब इज एक्शन. तो सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर कोई एक्शन आता है. नाउ नेक्स्ट फील लाइक. फील लाइक इज अ सिंपल फ्रेज. अ सिंपल फ्रेज टू मेक योर इंग्लिश साउंड मोर नेचुरल. जब हम
लाइक फ्रेजेस यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश में, तो इससे हमारी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल हो जाती है। लाइक ज़्यादा उसके जो होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। वी यूज़ फील लाइक टू शो दैट वी वॉन्ट समथिंग, जब हम ये बताना चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए। लाइक आई वॉन्ट सम कुकीज़, मुझे कुछ कुकीज़ चाहिए, तो आई फील लाइक सम कुकीज़। आई वॉन्ट, ही वॉन्ट्स सम मनी, ही फील्स लाइक सम मनी। तो फील लाइक दैट इज़ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको फ्रेज कह लो। तो ये आपकी राइटिंग को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। इट मेक्स योर राइटिंग मोर ब्यूटीफुल, मोर नेचुरल। सो ट्राई टू यूज़ मोर as much as phrases as well as good expressions in your writing. Now the next one tip is nevertheless हम यूज करते हैं किसकी जगह पे, in spite of the previous sentence, although the previous sentence is true. द ट्रेन, नेवरथलेस यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ की जगह, ठीक है। द ट्रेन वॉज क्राउडेड, नेवरथलेस आई वॉज एबल टू फाइंड अ सीट। नेवरथलेस के लिए आल्दो या फिर इन स्पाइट ऑफ, यानी कि नेवरथलेस किसको रिप्लेस करता है, आल्दो को या फिर इन स्पाइट ऑफ को। लाइक द ट्रेन वॉज क्राउडेड आल्दो आई वॉज एबल टू फाइंड अ सीट, यानी कि क्राउडेड थी लेकिन मुझे सीट उसमें मिल गई, तो आल्दो को रिप्लेस किया है यहाँ पे नेवरथलेस में। द मार्केट इज स्मॉल, नेवरथलेस आई थिंक वी कैन मेक अ प्रॉफिट, यानी कि फर्स्ट वन सेंटेंस भी सही है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लाइक इसमें होता है कॉन्ट्राडिक्शन होती है, यानी कि कंपैरिजन होता है टू सेंटेंसेस का, जिसमें दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं। लाइक द ट्रेन वाज क्राउडेड, अब ट्रेन क्राउडेड थी लेकिन उसको उसमें सीट मिल गई। तो जब हम दो अपोजिट सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं वी यूज नेवरथलेस। द मार्केट इज स्मॉल, तो मोस्टली जो स्मॉल मार्केट्स होती हैं उनमें प्रॉफिट कम होता है, लेकिन इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस, लाइक यहाँ पे अगर हम नेवरथलेस को रिप्लेस करें तो इन स्पाइट ऑफ से यूज़ करेंगे या फिर आल्दो। तो द मार्केट इज स्मॉल, नेवरथलेस आई थिंक वी कैन मेक अ प्रॉफिट, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ हो सकता है, बट द थिंग इज हेयर नेवरथलेस मेक्स योर राइटिंग मोर beautiful, more sound. So in our today's video we have discussed some writing tips that we should use while writing in daily routine. Either we are writing some academic assignments or we are using in a spoken. So I'll give you review of today's tips. Our first one tip was that don't use back with repeat return. In short, when we use the prefix with any word, we shouldn't use back with this word. जब हम किसी वर्ड के साथ री प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ बैक का वर्ड यूज़ नहीं करें। The next tip is said. Don't use said when देयर इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे said यूज़ नहीं करें, उसकी जगह वहाँ पे told यूज़ करें, और इन केस के वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे said यूज़ करें। द थर्ड वन टिप वाज देयर इज़ नो प्रपोजिशन विद द वर्ब रीच, रीच वर्ब के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं होती, एंड इट्स सेकंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट्स सेकंड वर्ब, second form of verb like past simple or past simple or past participle is also reach. Reached, the last पे pronounce नहीं होता, reach. He reached home around 3 o'clock. So pronunciation first verb की और first form of verb, second form of verb और third form of verb की सेम है। नेक्स्ट जो टिप थी वो ये थी कि
जो वर्ड्स आई ई आर पे एंड हो रहे होते हैं उनके साथ मोर यूज़ नहीं करें, इंस्टेड मच यूज़ कर सकते हैं। Ago and in. We use ago for past tenses, past events, and we use in for future events. The next one is don't use success as a verb. Like subject के बाद verb use होता है ना, तो success को as a verb use नहीं करें because success is a noun. The next one is phrase feel like. Feel like is replaced by want, यानी कि feel like replace किसको करता है, want को. Nevertheless replaces in spite of all those. So in this video we have discussed some writing tips. I hope so that you have liked this video and you have taught so you have learned many new things. So if you want to learn these tips on daily basis, if you want to learn grammar on daily basis, do subscribe my YouTube channel and like the videos and share with your friends. So see you in next video on the same channel. Goodbye, Allah Hafiz.